अस्सलाम वालेकुम जी। साइंस एग्जीबिशन का दूसरा पार्ट हाजिर है। तो जी सब टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं जो है वो मैथ्स और साइंस टीचर्स के नाम लेना चाहूँगी। मिस सबा, मिस जीनत, मिस किरण, मिस इकरा शर्मीन, मिस अक्सा शर्मीन, मिस अस्मा है, मिस सनम, मिस निमरा, मिस अंबर, मिस सानिया, मिस मारिया, मिस आयशा, और इन सब ने बहुत मेहनत की है। और जो हमारी हेड्स हैं उसमें मिस साइमा नौरीन, मिस साइमा यास्मीन, मिस नसीन आरिफ, मिस सायरा, मिस जुबैदा, मिस शाजिया अदनान, मिस शहनाज, मिस फरद, मिस हिना, इन सब ने बहुत मेहनत की है। सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब हेड्स को, और जो हमारी टीचर्स हैं उनको, और हमारी जो प्रिंसिपल हैं मैम मुसरत, उनको ये सब क्रेडिट जाता है। तो देखते हैं सबकी प्रेजेंटेशंस और कि कैसी प्रेजेंटेशंस हैं, बच्चों ने किस तरह दी हैं। आप ज़रूर इनको अप्रिशिएट कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को जो है आपने बहुत ज़्यादा लाइक देने हैं, ताकि जो जितने भी हमारे ये ब्राइट शाइनिंग स्टार्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो। तो चलें इनकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो सुनते हैं और देखते हैं कि आप, अगर आपको पसंद आएंगे आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं आपको इंशाल्लाह इनके रिव्यूज़ भी दूंगी कि जो वहाँ पे विजिटर्स आए थे, चंद विजिटर्स ने रिव्यूज़ भी दिए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट I will put it in. So the answer of 13 divided by 3 is 4%. ओके, वेरी गुड। क्लास 3 में पढ़ती हुई है। एक बैलेंस मशीन है, ये किसी भी चीज़ का वेट मालूम कर सकती है। ओके, अब मुझे 30 ग्राम वेट मालूम करके बताएं। 30 ग्राम राइस। हाँ, क्या है आपके पास? राइस, ठीक है। ठीक है, अब 30 ग्राम वेट, 30 ग्राम, और उसका वेट राइस आई है उसकी अकॉर्डिंग, ठीक है, गुड। ठीक है, ये एक स्क्वायर मशीन है, इससे हम नंबर्स को स्क्वायर मालूम करते हैं। जैसे दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है उसे स्क्वायर कहते हैं। ये मशीन 1 से लेकर 13 तक के स्क्वायर बताती है। ओके, अब मुझे 3 का स्क्वायर बताएं। ओके, तो 3 का स्क्वायर का आंसर क्या आया? 3 is 9। हम इससे वेट मालूम करेंगे, हम लाइट टू हैवी वेट पे जाएंगे। अभी मैं एक्स को मिस कर देता हूँ और देखते हैं मेरा सही होता है कि गलत। अब मैं देखते हैं कि मैंने सही किया। वेरी गुड। My name is Abdullah. I read in class 3. This is an old telephone. The telephone is a wonderful gift of science. It was invented by Graham Bell. It has a speaker and a microphone. It has a dialing pad. It saves time and money. It is an electronic device. अच्छा, हम आप मुझे बताएं 5 4 का क्या होगा? आप मुझे करके दिखाएं। वेरी गुड। Assalamualaikum. My name is Mahmoud Asif and I am from class 9 Science 1. Today I am showing you the model of hydroelectricity, in which electricity is generated from water. Its phenomena is to convert mechanical energy into electrical energy. The water flows from the turbine to make electricity. The water gains potential energy to convert kinetic energy from flowing water. Hydropower is supplied more than 1/6 of the world's in 2022.
Assalamualaikum. My name is Fatma Khan and I am from class Mathematics Science 2. I belong to Luna Foundation School. My project is about human body. The purpose of our project is that to study about different organs. These are muscles. Muscles helps in contraction and relaxation. There are 3 types of muscles: skeletal, smooth and cardiac muscles. These are blood vessels which circulates the blood in the body. Arteries carry oxygenated blood away from heart, and veins carry deoxygenated blood from the heart toward the body. This is brain. Brain is the major command and control center of our body. Ribs protect our lungs. There are 12 pair of ribs, lungs, internal structure of lungs. Heart is a muscular pumping organ which pumps blood in the body. Internal structure of heart. Intestines, stomach, liver. Kidney helps in filtration of blood. Internal structure of kidney. Ureter is a narrow tube which connects to the kidney to urinary bladder which passes urine, and urinary bladder which collects urine. That's it. My name is Saruba Jalal and I am from class 7B. My school name is Jinnah Foundation. Today my project topic is the human circulatory system. Assalamualaikum. My name is Hiba Aziz and I am from 8C. This is my project Nephron. Assalamualaikum. My name is Abdullah Iqbal and my school name is Jinnah Foundation School. This is human excretory system. My name is Hania Batul from class 6A, and my school name is Jinnah Foundation, and my project name is Excellence System. I am Sham from class 7B. My school name is Jinnah Foundation. Now, My name is Usman Akbar from class 8A and my school name is Jinnah Foundation. Today my project is neuron. Neuron is also called the neuron is the function and structure of nervous system. Neuron has 3 important structures and parts: dendrites, axon and cell body. My name is Falak Nas. I am from class 8A. My school name is Jinnah Foundation Secondary School. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले हमारे पास आता है इरिस। इरिस हमारी आई का कलर पैड कहलाता है, और इसके बाद हमारे पास आता है स्क्लेरा। ये जो हमारा वाइट पार्ट है ये स्क्लेरा कहलाता है। पिपल हमारा जो ये होता है, पिपल हमारा इरिस पिपल को कंट्रोल करता है। जब ज़्यादा लाइट होती है तो पिपल को छोटा करता है ताकि ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना पड़े, और जब डिम लाइट होती है तो पिपल को छोटा कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशबा और मैं क्लास 8C की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगी। बेसिकली ब्रेन हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हमें नहीं पता था कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो आज मैं आपको ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले सेरिब्रम जो होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और हमारे मसल को कोऑर्डिनेट करते हैं ड्यूरिंग रनिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग। और जो स्पाइनल कोड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर स्पाइनल कोड डैमेज हो जाए, कॉन्स होता है हमारी बॉडी ब्रेन का पार्ट होता है जो कि थिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो ऑस्पिटल लूप है वो हमारे कलर्स के लिए होता है। जैसे हम कलर्स को डिस्क्राइब करते हैं कि ये पिंक है, रेड है, तो वो हॉस्पिटल लूप के ज़रिए से होता है। और जो है फ्रंटल लूप जो होता है वो हमारे थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड जजमेंट के लिए होता है। और ब्रेन का वेट होता है 1.5 kg और इसका साइज होता है 1300 क्यूब सेंटीमीटर। Today I'm here to present my project, which is human nervous system. So let's start. Firstly, the nervous system collects information about changes inside or outside of the body. It collects information through receptor cells. So firstly, this is the brain, and there are 3 parts of the brain: cerebrum, and medulla. And this is the spinal cord, this is vertebrae, and these yellow strands are nerves. First, Assalamualaikum. My name is Nail Atra and I'm from class 8. First of all, I would like to talk to you about the DNA. DNA is the main part of our body. DNA जो है हमारे को जो है बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत यूज होता है। चीज़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू। My name is Ananaj and I am from class 8C. Here is my project, the microscope. I'm going to tell you about the microscope and the information about the microscope. Part of microscope, I place lenses,
तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए हम पानी को सेव कर लेते हैं। पानी किस तरह सेव होता है, जब एक्सेस रेनिंग होती है तो हमारे जो रिवर्स होते हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, और जब वो बजाय कि तबाही की तरफ जाएँ, इलाकों की तरफ जाएँ, वो तबाही में जाएँ, तो इससे हम पानी सेव कर लेते हैं। और इस पानी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस पानी का ये फ़ायदा होता है कि हम इस पानी को हम सप्लाई करते हैं उन इलाकों में जहाँ पे कहत खाली होते हैं। मुल्क में ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता नेचुरली, तो उस पानी को हम सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास थर है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे मुल्क में। वहाँ पे नेचुरली पानी नहीं है और ना वेल्स के ज़रिए पानी निकाला जाता है, तो हम इससे पानी वहाँ सप्लाई करते हैं सोचो बैराजेस वगैरह के ज़रिए, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसका मेन जो अब मौजूदा दौर में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है कि जब इसमें पानी फ्लो करता है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि टरबाइंस को रिवॉल्व करता है। जब टरबाइंस इसके रिवॉल्व होते हैं तो इसकी पावर हाउस में एक जनरेटर होता है जो कि इस प्रोसेस पर काम करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी थ्रो पोल से हमारे इलाके तक पहुँचाई जाती है। और इसमें जो हरियाली दिखाई है वो उसका हमने मेन पर्पस ये था कि हम इसको दिखाएँ कि हमारे मुल्क के किसान इससे बहुत फ़ायदे उठाते हैं। इससे फील्ड से पानी जाता है इसके ज़रिए, ट्यूबवेल्स और कैनाल्स के ज़रिए, और ये इसका मेन पर्पस है। Assalamualaikum everyone. My name is Mahamsha from class 9 science 1. My project lifting model is hydraulic track, which is related with physics. And it is linked to hydraulic machine. Assalamualaikum, my name is Anika Salim and I am from class 9 science 2. Let me tell you the Newton's law of motion today. So what हमारे ट्रस्टीज। देखो, मेरा नाम हफ्सा मोहम्मद जहीर है और मेरा नाम हफ्सा मोहम्मद। हमने बनाया है पॉलीगन्स एंड एंगल्स, और इसके बनाने की हमारी वजह ये है कि हम हमें पता चल सके कि मतलब जो हम शेप्स बनाते हैं पॉलीगन्स की, उनके एंगल्स क्या हैं। Assalamualaikum. This is my project area of a circle and boundary of a circle. First, I got the triangle part, 8 equal parts. By arranging these parts, we got a rectangular shape. The length of the circle is equal to the half of circumference of circle, and length is equal to the radius of the circle. अच्छा जी, ये हैं कंप्यूटर के मॉडल्स। मिस अंबर राशिद हैं कंप्यूटर की टीचर। उन्होंने ये सारे मॉडल्स हैं वो स्टूडेंट की हेल्प से बनवाए हैं। ये सारे मॉडल्स हैं फर्स्ट से लेकर अब तक के जितने भी डिवेल्प कंप्यूटर आ चुके हैं, ये सारे इनके आपको देखने को मिलेगा इसमें। और एक बच्ची ने माशाल्लाह से जो है वो एक गेम भी इन्वेंट की है, आप व्यू देखिएगा और आपने इनको अप्रिशिएट भी करना है और लाइक आपने इसकी बिल्कुल जरूर करना है। छोटा हुआ, स्पीड उसकी थोड़ी हाई हो गई, साइज़ इसका छोटा हुआ बट कैपेसिटी इसकी हाई हुई, तो इसमें जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती थी वो पंच कार्ड यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन में आईसी थी, तो साइज़ और छोटा हुआ, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई और इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करने लगा, और इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर भी आया था। बात करें, इसमें आजकल के लेटेस्ट चीज़ें कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल वगैरह सब इनहेंस होते हैं, और स्टोरेज और इसकी स्टोरेज डिवाइसेस यूएसबी, मेमोरी कार्ड वगैरह होती हैं। और ये हमारी फिफ्थ जनरेशन का है कंप्यूटर, जिसमें सारी चीज़ें सीपीयू भी होते हैं, स्पीकर भी होते हैं, कीबोर्ड, माउस एंड स्क्रीन होती है। एंड देन आपको ये कंप्यूटर के बारे में डिफाइन करेंगे। My name is Nahil and I am from class 6B. Now my presentation topic is computer working model. What is a computer? Computer is electronic device for storing and processing data. Laptop are popular device. Laptop was invented by Bill Gates, who was created by scientist. Laptop is Adam Smith. He was a British. It's a part of CPU, it's a motherboard, it's a main part of CPU, and it's a drive, disk drive, power connector, power supply unit, CD-ROM, fan, RAM and ROM, SATA cable. 10 size, sorry.
Class 10 science. Computers nowadays we help us before they help us for media things and they make things like that and ये हमें चला के भी दिखाओ Class 10 science 2 10 बाकी बच्चे भी आएंगे, आ जाइए। इजी करना हमारे काम को 10 science आ जाइए आप लोग। शॉपिंग इंस्टेंट है और ये हमारे लिए वर्क करता है। हमारे जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे साथ स्टोरी को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे सामान की अच्छा जी, ये बच्चियों ने बनाया है सेंसर रोबोट। ये देखिए सेंस से जो है ना ये काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। करी है मैं आपको बता देते हैं। तो इसमें जो हमने चीज़ें यूज़ करी हैं वो है आर्डिनो, सर्वो मोटर्स, सेंसर, वायर्स और बैटरी वगैरह। जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग है, बेसिकली इसमें हमने बताया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट लैन, सेकंड मैन और थर्ड वैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपोलाइजर एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क जो यूज़ होता है वो सिर्फ बिल्डिंग्स में ही यूज़ होता है, जैसे स्कूल्स बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग्स में ही यूज़ हो सकता है। उसके बाद मैन एरिया जो मतलब कि एक कंट्री में ही मकसूद होता है, सिटी टू सिटी होता है और ये सिर्फ मतलब कि आप जहाँ पर है ना उसके आसपास के एरिया में, अगर आप कंट्री से बाहर गए तो उधर नहीं हो सकता। उसके बाद ये है वैन जो है वो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क यूज़ होता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं आपको नेटवर्क मिल जाएगा। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कॉल भी कर सकते हैं, कुछ शेयर करना हो डाटा वो आप शेयर कर सकते हैं। My name is Jaswant and I am a student of class 9 science 2. Today I explain what is topology. The physical layout or arrangement of connected devices is called topology. यानी कि कंप्यूटर्स को एक से कनेक्ट करना टोपोलॉजी कहलाता है। Assalamualaikum. My name is Navin Aisha. I am in class 9 science. आज मैं आपको रिंग टोपोलॉजी के बारे में बताऊँगी। रिंग टोपोलॉजी जो है वो एक साथ जो है सारे किसी से वो एक रिंग से कनेक्ट होते हैं, वो एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें एक मतलब अगर उन्हें कोई डेटा शेयर करना हो तो वो डायरेक्ट किसी को शेयर नहीं कर सकते। वो पहले सेकंड किसी को शेयर करेंगे, दैन वो थर्ड, दैन फोर्थ एंड फिर वो फिफ्थ किसी पे आकर शेयर होगा और मतलब वो डायरेक्ट किसी भी को सेंड नहीं कर सकते कोई मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइवा आदिना और मैं क्लास 9 2 में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी में हमारा सेंट्रल होता है डिवाइस जिसको हम हब बोलते हैं, स्विच या हब। उससे सारे कंप्यूटर जो वो कनेक्टेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिया है और मैं क्लास 8B से हूँ। ये हमारा टोपोलॉजी है, इसमें 5 टाइप्स होती हैं, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार और बस। My name is Manahira sir and I am from class 8. I did this project for networking in satellites. First of all, we have to know that what is satellite. Satellite is an object that move around another object. सैटेलाइट अब हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो गई है कि हम जो है कि सैटेलाइट से हर काम करते हैं। हमने अपने सैटेलाइट को अपने लाइफ में इतना कर लिया है कि हम जो है सैटेलाइट के बिना शायद सर्वाइव ना कर सकें। इसी तरीके से नेटवर्किंग जो है, जितनी भी नेटवर्किंग है, अभी हम फ़ोन उठा रहे हैं, हम फ़ोन में कॉल कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है, तो सब सैटेलाइट में आ जाता है। My name is Rafia Kausar. I am a student of class 10 science 2. I have created a game in Scratch. Let me introduce you with Scratch. Basically, Scratch is a programming software. It allows us to create games, animation and many other things that you want. Scratch allows us to create games for fun and animation. मैंने इस गेम में एक बॉल को यूज़ किया है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, और वाई एक्सिस से जो है एप्पल ड्रॉप हो रहे हैं जिनको हमने कैच करना है। और अगर हम इन एप्पल्स को कैच कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्कोर यहाँ बढ़ते जाएंगे और जितने हम स्कोर करेंगे उतने ज़्यादा हमारे लेवल भी चेंज होते जाएंगे। इसके बाद अगर हमारा एप्पल यहाँ से बिल्कुल रेड लाइन पे ड्रॉप होगा तो इसका मतलब है कि आप आउट हो चुके हैं और आपकी गेम खत्म। This is my project, area for circle. First I got 30 triangle parts, 8 equal parts. By arranging these parts, we got a rectangular shape. The length of the circle is equal to the half of circumference of circle and length is equal to the radius of the circle. सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है
तो इसके ज़रिए हम पानी को सेव कर लेते हैं। पानी किस तरह सेव होता है, जब एक्सेस रेनिंग होती है तो हमारे जो रिवर्स होते हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, और जब वो बजाय कि तबाही की तरफ जाएँ, इलाकों की तरफ जाएँ, वो तबाही में जाएँ, तो इससे हम पानी सेव कर लेते हैं। और इस पानी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस पानी का ये फ़ायदा होता है कि हम इस पानी को हम सप्लाई करते हैं उन इलाकों में जहाँ पे कहर साली होती है। मुल्क में ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है नेचुरली, तो उस पानी को हम सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास थर है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे मुल्क में। वहाँ पे नेचुरली पानी नहीं है और ना वेल्स के ज़रिए पानी निकाला जाता है, तो हम इससे पानी वहाँ सप्लाई करते हैं सोच बैराजेस वगैरह के ज़रिए, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसका मेन जो अब मौजूदा दौर में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है कि जब इसमें पानी फ्लो करता है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि टरबाइंस को रिवॉल्व करता है। जब टरबाइंस इसके रिवॉल्व होते हैं तो इसकी पावर हाउस में एक जनरेटर होता है जो कि इस प्रोसेस पर काम करता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी थ्रो पोल से हमारे इलाके तक पहुँचाई जाती है। और हमने हरियाली दिखाई है, उसका हमने मेन पर्पस ये था कि हम इसको दिखाएँ कि हमारे मुल्क के किसान इससे बहुत फ़ायदे उठाते हैं। इससे फील्ड से पानी जाता है इसके ज़रिए, ट्यूबवेल्स और कैनाल्स के ज़रिए, और ये इसका मेन पर्पस है। Very good morning. Where are you from? Actually, I'm coming from Indus Hospital, and recently I'm doing post-RN BSN. As actually, I'm a nurse and I'm working in civil hospital. Okay. And I need to just do the BS post-RN BSN. Mashallah. And I joined the Indus Hospital, and your information and all students and teachers are doing very well work, because if teacher is good, the knowledge will already transfer from the teacher to student, and explanation and all things are so good. Thank you so much, sir. Thank you. आज साइंस एग्जीबिशन जो ये स्कूल ने मैनेज किया, रियली बहुत एक अच्छी एक्टिविटी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम लतीफ़ है और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, कंडक्टिंग द फर्स्ट एड CPR ट्रेनिंग फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर्स सिंस लास्ट 15 years. I'm a training manager at Pakistan Red Cross. That was a wonderful experience visiting फातिमा जिन्ना फाउंडेशन स्कूल, और यहाँ जो बच्चों के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें ना सिर्फ बच्चों की काविश को मैं सराहता हूँ बल्कि असातिज़ा ने जो काम किया, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। और मैं इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए तो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हों उसी से रिलेटेड जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो उसके मेंटोर्स हों, उनको ज़रूर इनवाइट किया जाए। Yes, sir. मेरी खिदमत आपके लिए हमेशा हाजिर है, मैं आपको Thank you so much, sir. You are most welcome. I really appreciate all of you. Thank you so much, sir.